Hi, all of you. Myself, Raju Vyas sir from Mumbai, teaching accounts since last more than 40 number of years. As you all know, in any exam, objective gives a student good number of marks and in less time. So I have decided to give some objective to start with the topic bills of exchange. In the topic bill of exchange, you will see in this video. First, I will show to you how we prepare a specimen copy of a bill of exchange, and after that I'll take around 30 to 40 objectives. It is very scoring to start straight away without wasting any time. In your examination, sometimes they give the student to prepare a specimen copy of a bill of exchange, and straight away they give around 5 marks. In the question, they will give to you drawer's name, address, date of bill, date of acceptance, etc. You should only know where to write, what to write. So to start, first of all, you should write here bill of exchange. A stamp in the corner. Just below the stamp, you write the amount over here, rupees so and so. In one corner, drawer's name and address. Exactly opposite corner, drawee's name and address. Very simple. Drawer in one corner, opposite corner is drawee. This sentence which is written here is almost fixed. Period and amount. The period may be in months, maybe in days. So either you will write months or days depending on the question. Suppose they say 3 months, then you will write here 3 months. You will not write days. Suppose they say 60 days, then you will write here 60 days. You will not write months. 60 days after date, paid to me. Now paid to me, that me just keep in mind. Here you will write rupees, say 10,000 or whatever as per the question. Accepted, as you know that a bill of exchange is accepted by the drawee. So drawee signature and on which date did he accept, that is called as date of acceptance, and here drawer's signature. In short, drawer name address, drawee name address, drawer signature, drawee signature, date on which bill is drawn, date on which bill is accepted. This is how a specimen copy looks like. Now I have taken 2-3 questions from your textbook itself to make it more clear. This is a question shown in your textbook. I'll just go through in a minute. You can see here drawer, drawee, amount, period is 3 months, date of bill and date of acceptance. Very simple. You can see stamp here, amount here, drawer name address with the date, drawee name address, signature of drawer, signature of drawee, and this sentence remaining the same. What next they can do? Next they can give is the name of payee. In case they give you payee, drawer, drawee, payee, then you remove this word me from here. Remove this word me from here and write your name of pay with address. For example, I'll show you here. As you can see over here, they are giving drawer, drawee and payee. Payee Shravan Dave, Panvel. Everything is the same with drawer address, drawee name address. Everything is same. Only please notice 90 days after date. Pay.
See, the payee's name is Shravan Dave Panvel. Here it is written Shravan Dave Panvel. Most of the time in the exam, this is the question which is common, wherein drawer, drawee and payee are given. Three parties. Sometimes drawee may say that the bill is accepted. You can see here after sight. Then everything remains the same. In the question they will mention like this, after sight. Then in the sentence, 2 months after date which we are writing, instead of that you will write 2 months after sight. Otherwise everything remaining as it is. This is a question from your textbook. You can see it later on. Next, many times drawee puts some condition while preparing the bill of exchange. You can see your bill is prepared for 18,750, but drawee accepted the bill for only 15,000 rupees. So what you have to do, you have to prepare as usual. Only at the end, accepted, here you will write for 15,000 only. This is called qualified acceptance. It is called qualified acceptance. The drawee may change the amount or drawee may change the period. You see here in this example, the bill was accepted for 2 months. Now actually bill is prepared for 1 month, but drawee accepted it for 2 months. So drawee may change the amount, drawee may change the period. At the time of acceptance, he will put the condition there. Otherwise, entire bill of exchange format will remain the same. There is one bill which is called as a demand bill, wherein the period is not there. If you check out, there will be no period mentioned. Demand bill means any time the holder of the bill can go and demand the money. So, in the starting year, where we are writing the period, 2 months, 3 months, etc. Now, no period is mentioned, only you write on demand, pay to me, वगैरह वगैरह, that will remain the same. बाकी का सब same रहेगा. आगे जो हम लोग 2 months, 3 months लिखते हैं, वो नहीं लिखना है, सिंपल लिखना है on demand, that's it. अब सीधे चलते हैं हम लोग मेन काम पर, ऑब्जेक्टिव. अब टू स्टार्ट विथ, मैंने ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया है कि ये आपको फिल इन द ब्लैंक में यूज हो सकता है, आंसर इन 1 वर्ड में भी आ सकता है, MCQ जहाँ पे 4 आपको आंसर दिए जाते हैं, आपको एक सिलेक्ट करना है, ट्रू और फॉल्स. मतलब बनाया मैंने इस तरीके से है कि आपको किसी भी फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव में यूज हो जाएगा. आप सुनिए इसको ध्यान से. मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता रहूंगा. द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, तो बोले ड्रॉवर. द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, वी कॉल हिम ड्रॉई. द पर्सन टू हुम द पेमेंट ऑफ द बिल इज टू बी मेड इज पेई. यानी कि 2 महीने 3 महीने बाद जिसके हाथ में पैसा दिया जाएगा उसको हम पेई बोलते हैं. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का साल है 1881. जो बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो ट्रेड बिल है. ट्रेड बिल का मतलब है कि हम गुड्स बेचते हैं या कुछ देते हैं, उसके अगेंस्ट में ये बिल बनता है. बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन विथ कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ ट्रेड बिल. लेकिन कई बार बिना गुड्स बेचे वगैरह भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है. बिल ड्रॉन विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन बिल. नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज? बोले 3. कैसा? बोले ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई. डेज ऑफ ग्रेस मतलब एक्स्ट्रा डेज, अगर उसको 3 महीने का टाइम दिया गया है ड्रॉई को,
तो 3 महीना प्लस 3 दिन कंपलसरी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। ओके, प्रॉमिसरी नोट में कितना पार्टीज? बोले देयर आर 2 पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट। ओके, जब ड्यू डेट कैलकुलेट करना होता है 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो भी है, तो हम लोग डेट टू डेट चलते हैं। जैसे 5 जनवरी से 5 फरवरी 1 महीना, 5 फरवरी से 5 मार्च 2 महीना। तो ये जो 5 मार्च आया जिसमें हमने डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं किया, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट विदाउट एडिंग डेज ऑफ ग्रेस। लेकिन ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय 3 दिन ग्रेस का हमने ऐड कर दिया, 5 मार्च 6 7 8। तो 8 मार्च जो आया उसको हम लोग बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। सो विदाउट एडिंग डेज ऑफ ग्रेस नॉमिनल ड्यू डेट, आफ्टर एडिंग 3 days of grace it is called legal due date. फाइन। अगर ड्यू डेट छुट्टी पब्लिक हॉलीडे तो क्या? तो उसके पहले वाला दिन यानी कि प्रीवियस डे, प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस डे, उसको ड्यू डेट माना जाएगा अगर पब्लिक हॉलीडे पर ड्यू डेट आता है तो। ओके, नोटरी पब्लिक कौन है? नोटरी पब्लिक इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, बेसिकली ही इज एन एडवोकेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा? नोटिंग चार्जेस का भार किस पे जाएगा? नोटिंग चार्जेस विल बी बॉर्न्ड बाय ड्रॉई। ठीक है। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल, वो उसको क्या बोलेगा? बिल्स पेएबल। जो व्यक्ति बिल ड्रॉ करेगा वो उसको क्या बोलेगा? बिल्स रिसीवेबल। जिस व्यक्ति के हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको हम क्या बोलेगा? वी विल कॉल हिम होल्डर ऑफ द बिल। ओके, अगर बिल ड्यू डेट से पहले ऑनर किया गया, मतलब ड्रॉई ने बिल का पैसा ड्यू डेट से पहले दे दिया, तो क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। ओके, एक बिल ऑफ एक्सचेंज अभी तक ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया, बिफोर एक्सेप्टेंस, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। अ बिल विच इज स्टिल नॉट एक्सेप्टेड वी कॉल इट ड्राफ्ट। ओके, एक बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है, मैं इसको किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। I can endorse the bill to another party. Okay. The person who endorses the bill is called endorser. यानी अगर मैं किसी X को बिल देता हूं तो मैं एंडोर्सर है, और X जिसको मैंने बिल दिया he will be called endorsee. ये बड़ा फेमस ऑब्जेक्टिव है। The person in whose favor a bill is endorsed, we call him endorsee. अब कुछ मिनट पहले हमने बोला कि अगर ड्यू डेट छुट्टी का दिन है तो प्रीवियस डेट इज कंसिडर्ड एज द ड्यू डेट। तो अगर ड्यू डेट 15 अगस्त आता है तो आपका आंसर है 14 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे। अगर 26 जनवरी ड्यू डेट आता है तो आपका आंसर है 25 जनवरी, बिकॉज 26 जनवरी इज अ रिपब्लिक डे, नेशनल हॉलीडे। ठीक है। ओके, अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास है और आप उसको डिस्काउंट करना चाहते हो, देन द बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी बैंक में जाके आप पैसा ले सकते हो। अ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन जून 12 फॉर 2 months। अब 12 जून से 12 जुलाई 1 महीना, 12 जुलाई से 12 अगस्त दूसरा महीना, फिर 3 दिन ग्रेस का 13, 14, 15, क्या आया? 15 अगस्त। लेकिन 15 अगस्त नहीं लिखना, क्या लिखना? 14 अगस्त। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे इज अ नेशनल हॉलीडे। आगे बढ़ते हैं। नोटरी पब्लिक, गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर आपका बिल डिसऑनर होता है तो आप अपना कंप्लेंट वहां देते हो।
तो वो कुछ फीस चार्ज करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, फीस चार्ज्ड बाय नोटरी पब्लिक। ठीक है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ड्रॉ होता है और उसको पेमेंट भी करना है सेम कंट्री, तो उसको बोलते हैं इनलैंड बिल। इंडिया में ड्रॉ हुआ और इंडिया में ही उसका पेमेंट होगा तो वो इनलैंड बिल है। लेकिन बिल ड्रॉ हुआ एक कंट्री में एंड पेएबल इन अनदर कंट्री, ड्रॉन इन इंडिया पेएबल इन जापान, तो क्या बोलेंगे उसको? विल कॉल इट एज अ फॉरेन बिल। ये सब फिल इन द ब्लैंक में आता है या एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आप इसको तो रिपीट करके वीडियो वापस देख सकते हैं ना, हाँ, इसलिए हम लोग इसको 1 बाय 1 फटाफट ले रहे हैं। अच्छा, ड्राफ्टिंग अ न्यू बिल, पुराना बिल कैंसल करके नया बिल बनाया, उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ अ बिल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई? इट इज ऑफ अ क्रेडिटर एंड अ डेटर। कई बार हम लोग बोलते हैं कि क्रेडिटर ड्रॉज अ बिल ऑन डेटर, ये भी फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। एनी पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, 11th में भी हम लोग पढ़ाते थे कि जिसकी लायबिलिटीज बहुत है और एसेट्स कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनसॉल्वेंट पर्सन। ओके, नेक्स्ट, अमाउंट दैट cannot be paid by the acceptor on account of insolvency। मतलब ये कि ड्रॉई आपका बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ पैसा उसने दिया, कुछ पैसा वो नहीं दे सकता है, उसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं डेफिशिएंसी। अ बिल हुज ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी हम लोग बोलते हैं 2 महीने का बिल, 3 महीने का बिल, तो उसका काउंटिंग, पीरियड का काउंटिंग अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर साइट बिल। कहां से काउंटिंग? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, देन इट इज कॉल्ड आफ्टर साइट बिल। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, हमने आगे बोला 5 मिनट पहले के बिल ऑनर्ड बिफोर ड्यू डेट, तो हम उसको कई बार डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं रिबेट। हाँ, रिबेट वर्ड ध्यान में रखना है, बड़ा फेमस फिल इन द ब्लैंक में आता है। अगर ड्रॉई या एक्सेप्टर ऑफ द बिल ड्यू डेट पर पेमेंट कर देता है तो बिल बोलते हैं ऑनर्ड। बिल इज ऑनर्ड का मतलब ड्रॉई मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल। लेकिन अगर ड्रॉई ने पैसा देने से इनकार कर दिया, if ड्रॉई refused to make the payment of the bill is said to be dishonored। My dear friends, और आगे कंटिन्यू करता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो जरूर से राजू व्यास सर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। लास्ट में यहां पर क्या लिखा है कि एक्सेप्टर, जैसे मैंने स्पेसिमेन कॉपी में ये वर्ड यूज किया था क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कि अगर ड्रॉई एक्सेप्ट करते समय नीचे एक्सेप्टेड फॉर 2 months होगा तो 3 months कर दिया या अमाउंट में कुछ चेंज कर दिया, इफ यू पुट सर्टन कंडीशंस देन इट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा वेबसाइट है www.vyaseducation.in, और सब स्टूडेंट्स को खास बोलूँगा, नेवर एवर क्विट एंड नेचुरली ऑल द बेस्ट। तो सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। दूसरा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव लेकर मैं आऊँगा। यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स वंस अगेन। ऑल द बेस्ट।